has initiated this program. Let me share another fact which I know from personal experience. It's not Jammu and Kashmir, but let me give you the experience of the Northeast. Earlier governments used to say that we have a look east policy. When the Prime Minister assumed office in May 2014, he said that we don't need just a look east policy, we need an act east policy. Now I joined if you can request them to please take their conversations elsewhere. I joined the Council of Ministers in September 2017, and ever since I remember, every minister had instructions to go to the Northeast at least once a month. And I've been landing in Guwahati airport where there have been several other ministers. So this has been done elsewhere. And all I can share with you is that the quantum and pace of economic development as a result of this initiative of the Prime Minister, particularly line ministers going there, spending them time personally, makes a difference. And it makes a difference. Why? I'll explain to you. You see, you can carry out the review of your ministries by interacting with the Principal Secretary, Urban Development, or I met the young CEO of the Special Purpose Vehicle for Smart City. But that's not the same thing. I mean, I can review the pace of the projects from Delhi by VC also. But it makes a difference by coming. I mean, first of all, I get an opportunity to meet you. By talking to you, and believe me, the minute I landed, I had one interview in the car on the way to the first project. And from there, yeah, it makes a lot of difference. Being personally present, the sights, the smells, the reactions, you can make an assessment whether things are improving or not. Exactly. So I think I can tell you, I'm personally very happy to be here. I mean, it's a very auspicious day in our, in our calendar. Yeah, that is one. But more than that, today Prime Minister also inaugurated the Gati Shakti mission, which is a major framework platform for all the major, how do you put it, infrastructure development to produce seamless connectivity, to produce last mile connectivity. हमारे यहाँ होता क्या नॉर्मली बताऊं, सरकार में, मैं ये नहीं कह रहा आपके यहाँ, मैं अपने यहाँ कह रहा हूँ, केंद्रीय सरकार की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो 6 मंत्रालय हैं जिन्होंने हाईवे बनाना, वो बना लेंगे। हाईवे बनाने के समय मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न है। वो क्या करते हैं कि हाईवे बनाने के समय वो किसी से पूछते नहीं, हाईवे बन जाता है, बाद में हमारे मंत्रालय आता है कि ये जहाँ तो गैस पाइपलाइन भी लगानी थी, तो फिर जो बना बनाया वहां पे खुदाई शुरू एंड पाइपलाइन लेनी। Similarly happens with the intersection of all the ministries. So today when the Prime Minister inaugurated Gati Shakti, so I think there are several things happening. One is, during this religious period, 75th year of our independence celebrations, inauguration of Gati Shakti, and the very important place that Jammu and Kashmir occupies in the country's overall scheme of things. Look, on 370, I was present in the House, in the Rajya Sabha when it was introduced. And I can tell you, I was filled with joy. I'll tell you why. I'm a student of history. When 370 was brought in the Constituent Assembly, clearly, Dr. Ambedkar and everybody said, all right, if you want to bring it in, it's designed for a temporary basis to deal with a limited set of circumstances. अब उसको आपने इंस्टीट्यूशनलाइज करके लॉन्ग टर्म कर दिया, और उसके कारण जो उनका ऑब्जेक्टिव था उसके खिलाफ डेवलपमेंट में रुकावट आ गई. आई थिंक इट वाज टाइम, एंड नो मैटर व्हिच वे यू लुक एट इट, आई थिंक थिंग्स हैव गॉट मच बेटर एंड दे विल इम्प्रूव मच फास्टर. ये जो आपके यहाँ मंत्री आए हैं, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दिस बिकम्स अ रेगुलर फीचर. सर, यहाँ के लोग बहुत देर से गैस पाइपलाइन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 370 की वजह से बहुत सी ऐसी पॉलिसी स्कीम्स थी जो जम्मू के लोगों तक नहीं पहुंच पाई, और अब एवरीवन इज ईगर कि कब यहाँ पर वो स्कीम्स पहुंचे, कब यहाँ पर डेवलपमेंट में थोड़ी सी तेजी आए. तो
गैस पाइपलाइंस का जो प्रोजेक्ट था तो जम्मू कश्मीर में कब तक पहुंचा? बहुत जल्दी आएगा, मैं बता रहा हूँ। मुझे जहां तक याद है, मैं इसका स्पेसिफिकली चेक भी कर लेना, जस्ट चेक विद रसाल व्हेन प्रिसाइज, मैं प्रिसाइज डेट की बात करूँ। देखिए, इस समय हमारे पास कोई 29,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है और आने वाले इस समय में 19 किलोमीटर आने वाले में उतनी, वी आर गोइंग टू टेक दिस अप टू 35,000 किलोमीटर एंड जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दैट। देखिए, गैस पाइपलाइन ले करने के लिए यू नीड अ सेट ऑफ परमिशंस एक्सेट्रा, वो डिले हुआ है। और मैं आई कैन टेल यू विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कि आवर अभी नेक्स्ट 3-4 months में I have sought the Prime Minister's blessings for him to either physically or virtually inaugurate about 4,000 kilometers. तो 19,000 पे तो ऑलरेडी हैं, 4,000 और ऐसे बढ़ता जाएगा। और कुछ ही समय की बात है, मैं अभी चेक करके आपको प्रिसाइज बता दूंगा। बट सब लोग इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं एंड आई थिंक व्हेन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, मैं स्वच्छता के बारे में बोलता था, स्वच्छ भारत मिशन सक्सीडेड, अभियान सक्सीडेड बिकॉज ये सरकारी प्रोग्राम जो है एक जन आंदोलन बन गया। यू टुक इट फ्रॉम बीइंग अ प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू बीइंग अ प्रोजेक्ट ऑफ द पीपल, देन यू गेट पीपल्स एंथुसियाज्म। और जैसे आपने बोला मैडम कि लोगों में eagerly waiting, so that is what makes the difference, because then you get the push and the pull coming together. So Jammu and Kashmir is heading on towards development, sir. And I am talking about the twin capital cities, Jammu and Srinagar. They are being developed as a smart cities. How do you see that smart cities they will further देखिए, help in development of स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं बाय वे ऑफ बैकग्राउंड। हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें हमने 2014 के चुनाव के पहले ये कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि जब हमने उसकी ड्राफ्टिंग की थी हमने शायद ये सोचा था कि ये 100 ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज होंगे, नहीं। पर जब हमने काम करना शुरू किया, और ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इज नॉट कि दिल्ली में बैठ के किसी ने ये निर्णय लिया, हमने प्रपोजल्स मंगवाए, तो देश भर से प्रपोजल्स आए। और प्रपोजल ये नहीं कि हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, हमने उनको ये निमंत्रण दिया कि आप बताइए आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, कोई एग्जिस्टिंग सिटीज है वहां पे एबीडी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वहां पे कौन सा प्रोजेक्ट नए लाना चाहते हैं, अगर नया स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए। जैसे दिल्ली में नई दिल्ली is a ABD, it's a brownfield district, but in Naya Raipur is a greenfield. greenfield? Yeah. Like that there are greenfield. देखिए, सो जब हमारे पास ये प्रपोजल्स आए तो उनको इवेल्युएट किया गया, और जो 100 शहर जो चुने गए उनकी अनाउंसमेंट जनवरी 2016 से शुरू हुई और ये चलती गई शायद 2018 तक। तो नॉर्मली ये लगता है कि एक स्मार्ट सिटी बनाने में आपको 5 साल लगता है, नॉर्मली नॉर्म है। क्यों? पहला साल 1.5 साल तो लग जाता है कि आप उसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, उसके साथ कोई प्रोजेक्ट कंसल्टेंट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो अनुभव स्मार्ट सिटी बना हमारे यहाँ कहीं भी नहीं था। क्योंकि क्या स्मार्ट सिटी क्या है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अर्बन सर्विसेज कैन बी स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब हमने देखा कई जगह जहां स्मार्ट सिटी बनी है और स्मार्ट सिटी का हब होता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहां पे issues relating to women's security have suddenly improved because crimes against women have come down because there are CCTV cameras all over. I'm just giving you an example. Then urban transport, more than that, मैं पहला मेरा जो अनुभव हुआ, मैं सितंबर 2017 में I was included in the Council of Ministers, तो पहला मैंने स्मार्ट सिटी जो विजिट किया वो मध्य प्रदेश में थी, भोपाल या इंदौर, और वो स्वच्छता में हमेशा रैंकिंग वन है। तो मैं उनके जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बाय द वे हमें 100 बनाने, मुझे लगता है 70-75 बन गया, अभी 20-25 रहते हैं। जो उन्होंने लेट शुरू किया ऑब्वियसली टेक लॉन्गर। तो मैं मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके साथ बैठा, उन्होंने माइक में पता नहीं क्या बोला, सारे शहर के माइक्स जो हैं, जो सीसीटीवी कैमरा, वहां से मैं शिवराज आपका मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, दिस इज व्हाट यू कुड डू।
और महामारी के दौरान ये जो हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, दे एंडेड अप बिकमिंग लाइक वॉर रूम्स. यू आर एबल देयर टू इंश्योर कि कहीं दवाइयों की कमी है, कहीं आपको किसी और अर्बन सर्विसेज भेजनी थी. सो अभी आई एम टेलिंग यू, जम्मू आई हैव कम, आई विल मीट द पीपल देयर, आई विल रिव्यू इट. तो कभी कभी हमारी जो शुरुआत होती है, द बिगिनिंग्स आर मॉडेस्ट, बट देन यू डेवलप इट. बट ये 5 साल का देखिए, देयर इज अ कंप्लीट, और मैं बड़े दावे से कहता हूं, अर्बन रेवोल्यूशन. प्रधानमंत्री आवास योजना 1 करोड़ पहले हमारा डिमांड असेसमेंट थी, फिर हमने उसको रिवाइज की 1 करोड़ 12 लाख की है. अभी हम 1 करोड़ 13 लाख ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं आवास. और आपको बता रहा हूं, मेरे को रोज फोन आते हैं, हमने क्या हमारे जिला से, कल उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी का मुझे फोन आया कि हमने BLC वो जो है वर्टिकल, उसमें हमने 900 और भेजे. डिमांड आई जा रही है. स्वच्छ भारत में मिशन में, स्वच्छता मिशन में 2014 में इस अभियान के शुरू से पहले हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग कोई 17-18% थी, अभी 70% है. इसको हम SBM 2 में 100% ले जा रहे हैं. हम ये जो बड़ी लेगेसी डंप साइट्स हैं, पहाड़ जैसे बने हुए हैं, उनकी रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन, शहरों को ODF तो करना. प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उनका सपना है कि बाय द टाइम वी सेलिब्रेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा, इंडिया शुड बी ओपन डेफिकेशन फ्री. ओपन डेफिकेशन फ्री तो हो गया, एक स्टेट नहीं हुई, वेस्ट बंगाल. बट बड़ी खासियत उसमें यह है कि ये अब लोगों से डिमांड आती है. जब नए नए हमने टॉयलेट बनाए तो कुछ लोग कह रहे थे अनहाइजीनिक है, हमें तो शौच के लिए बाहर फील्ड्स में जाना है. कुछ लोगों को जो टॉयलेट मिला, उन्होंने कहा एक कमरा और मिल गया, यूज इट एज अ टेलर शॉप. एक फिल्म भी बनी. नाउ इट्स द अदर वे अराउंड. सी द बेनिफिट इट हैज गॉट फॉर द टू आवर वुमेन, द डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड. You see how much of a difference. दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया that title of the house will have to be in the name of the lady of the house. So SDG goal 5, women's empowerment, वहां से वो बढ़ता. So I can give you a series of development. आपने एक सवाल पूछा था, ये कब तक पाइपलाइन ले हो जाएगी. या नॉर्मली एक टेंडर अवार्ड करने के 1 साल बाद, यहाँ जो पाइपलाइन आ रही है शायद गुरदासपुर से आ रही है जम्मू, वो 2024 तक हो जाएगी. नाउ आई एम गिविंग यू अ फर्म डेट बिकॉज आई डील विद नाउ 35,000 किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइन, सो आई एम नॉट अवेयर, बट दिस इज द बेसिस ऑन विच यू वर्किंग. जल्दी भी हो सकती है. सर, मेरा एक सवाल और था कि जैसे आपने, मैं इसी पर बात करने वाली थी कि मोदी सरकार ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि फीमेल्स के नाम पर हम प्रॉपर्टी रखेंगे. अदरवाइज फीमेल्स हमेशा इग्नोर रहती थी, उनको एम्पावर करनी चाहिए. लेकिन जम्मू कश्मीर में सर अभी भी जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर ये अवेयरनेस नहीं पहुँची है. तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्पेशल ड्राइव चलाएगी कि ताकि उन लोगों तक ये बात पहुँच सके? मैडम देखिए, अब मैं आपको बताऊं, ये जो अवेयरनेस की बात है, ये प्रचार करना, अब ये हमारे फॉर इंस्टेंस मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात है. मैनुअल स्कैवेंजिंग है, हमने कानून तो पास कर दिया कि इट इज प्रोस्क्राइब्ड कि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग, आप अब मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट का ठेका लेते हैं तो उसको आप नहीं मैनुअल स्कैवेंजिंग, बट कई लोग अभी करते हैं. फिर हमने ये किया कि अगर ये प्रोस्क्राइब करने के बाद भी आपको करने, यू मस्ट हैव प्रोटेक्टिव गियर एक्सेट्रा. देखिए बिल्कुल क्लियर है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है या ग्रामीण है, टाइटल हैज टू बी इन द नेम ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस. और जहां उसके बाद दिक्कत होती है, इट कैन बी को जॉइंटली, बट उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए, दिस इज आवर अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री. जब भी किसी हाउस होल्ड में कोई डिस्कॉर्ड होती है, नॉर्मली ये है, इट्स द लेडी ऑफ द हाउस हु हैज टू फाइंड ऑल्टरनेट. अब अगर टाइटल आपके यहाँ लेडी के नाम पे है, तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा एक डिटेरेंट इफेक्ट होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दैट राइट शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द लेडी, एंड आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट. ऑल आई एम सेइंग इज कि थोड़ी सी डिटेरेंट इफेक्ट होगा. एंड आई कैन टेल यू, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी. हमारे यहाँ कई एरियाज जो है मेट्रिलिनियल सोसाइटीज में है, और देखें आप, बहुत विमेन्स एम्पावरमेंट पे जो काम हो रहा है, दबा के हो रहा है. हमारी योजनाएं जो है ना, दे ओनली इनकॉर्पोरेट वन प्रोविजन
But I think some of these things have really advanced very well. Sir, as you have spoke about Swachhata, sir. So two of the major cities you mentioned specifically from Madhya Pradesh are Bhopal and Indore, that they're coming on top in Every fact, year. Every year. Hmm. But contrary to that, I am talking specifically about Jammu and Srinagar cities. सर पिछले 2-3 साल का अगर आप फिगर आउट देखेंगे तो वो काफ़ी नीचे हैं स्वच्छता के हिसाब से. सो वन थिंग स्पेसिफिकली आई वांट टू मेंशन अबाउट इन दिस रिगार्ड सर कि हमारे पास जो यहाँ पे सीवरेज निकलता है दैट इज़ अराउंड 300 to 400 मीट्रिक टन पर डे. आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट जम्मू सिटी. लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स होने चाहिए. भाई साहब आप इस पे डोंट बी डिस्करेज्ड. Overall, the amount of garbage that is being produced in the country is more than the waste processing facility. मैं उसको चल के देखा, पर आप ये देखिए ना इसका इतिहास क्या रहा. मैंने आपको बताया 2014 में ये कहते हैं मेरे कोलीग्स जो हैं कि 18% होता था. मैं नहीं मानता, मेरे हिसाब से 18% से कम होता था. ठीक है, पर हम 18% का आंकड़ा लेके चले. हमने 2014 से लेके अब तक 7 साल में 14% या 18% को 70% कर दिया. ठीक है, पर हमने और काफी कुछ किया. एक तो लोगों की सबकॉन्शियस में ये चीज बैठ गई है कि वी नीड टू बी एबल टू सेग्रीगेट वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन. नहीं तो कोई रेस्टोरेंट है, सुबह से लेके काम तक रात को 11:30 बजे वो जो कटी हुई सब्जी का वो जो वेस्ट है, बाकी चीजें जो लेफ्ट ओवर है, उसको लेके बगल वाली नाली में डाल दिया. बगल वाली नाली में डालने से क्या होता है? You clog the drain and you do all kinds of other problems. That is changing. But what is changing in addition? You are converting waste into wealth. वेस्ट की आप एनर्जी बना रहे हैं. अभी मैंने एक साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल का एक MOU साइन करवाया है, वेयर दे विल बी यूजिंग वेस्ट टू प्रोड्यूस कंप्रेस्ड बायोगैस. और मैं ये नवंबर तक दिल्ली में ये कार्यक्रम कंप्लीट करा रहा हूं. और मेरा इरादा ये है, मैंने तो कमिटमेंट किया है कि मैं 100 ऐसे और लगा दूंगा. देखिए, मैं समझता हूं कि आपके यहाँ जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं उनके कारण प्रोग्रेस स्लो डाउन थी, पर अब आई एम कन्विंस अब ये तेजी से चलेगी आगे. अब मैं आपको थोड़े आंकड़े देना चाहता हूं. टॉयलेट कंस्ट्रक्शन स्टेटस आपके यहां टारगेट था 59,600 यूनिट्स एंड 900 इंडिविजुअल हाउसहोल्ड. 59 का टारगेट था और इसमें 900 इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कम्युनिटी टॉयलेट्स, और ये जो है इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट नहीं, 51,000 to 86% अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ सो. इट्स अ वेरी गुड कंस्ट्रक्शन. आपका 86% इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट्स बन गए हैं और थोड़े और बन रहे हैं. तो मतलब अगर आपका टारगेट था 59,600, 51,235 हो गए. कम्युनिटी टॉयलेट्स का आपका था टारगेट था 3,585 और आपके यहां 3,329, 92.8% बन गया. दिस इज अ गुड फिगर. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जम्मू एंड कश्मीर में 100% डोर टू डोर कलेक्शन इज प्रैक्टिस्ड इन 75% ऑफ द वार्ड्स. Source segregation is being practiced only in 22% wards against total number of, so ये कम है source segregation. Out of 978 TPD of waste generated in Jammu and Kashmir, 53% of waste is being processed by the UT. So कम है. So we clearly जहाँ पे deficiencies हैं, clearly toilet बनाने में या targets are being completed within the period. वहाँ waste management ये सिर्फ यहाँ नहीं है, और जगह भी problem है. सर, यहाँ के हेरिटेज पॉइंट्स भी ऐसे हैं जिनको भी स्मार्ट सिटी में हमने कवर नहीं किया. बहुत सी हमारी मुबारक मंडी पैलेस थी जो कि टोटली इग्नोर है. हम लोग सिर्फ बातें करते हैं कि हाँ इसको रिजर्व करेंगे या इसको हेरिटेज पॉइंट बनाएंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा. वो दूसरी बात है, उसके कारण कई हो सकते हैं. मुझे पता नहीं आप जब हेरिटेज की बात करते हैं, हम हृदय स्कीम की कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर. मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब देश भर में अर्बन रिजुविनेशन के बारे एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है. ठीक है, लोगों को ये भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मान आप स्वच्छता पे एम्फेसिस देते हैं तो आपकी लैंड वैल्यू इंक्रीज होती है. अब भोपाल इंदौर में जो शहर अच्छे स्थान पे आ रहे हैं साल आफ्टर साल,
उन्होंने बहुत चीजें की हैं। उनकी वहां जो स्वच्छता की वैन सुबह निकलती है और जिंगल के साथ, पीपल सेलिब्रेट दैट एज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। अच्छा, किसी रैंकिंग में पोजीशन लो होना, मैं समझता हूं इसमें कोई इट्स अ चैलेंज, इट बिकम्स। आई हैव सीन सिटीज जंप कितना 50-60, गाजियाबाद जंप फ्रॉम 136 से 50-60 चले गए। तो मुझे कोई डाउट, थोड़ा सा आपके यहाँ तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ enthusiasm amongst your municipal officials by others, तो थोड़ा सा इसमें करके you can see suddenly a transformation. Sir, as you are in the city now and tomorrow you will be holding special review meetings with concerned departments under your ministry. Sir, any आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे क्यों आप ऐसी बातें करवा रहे हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना बोलता हूं। मैं अभी लैंड किया हूं शाम को कोई 6-6:30 बजे। लैंड करने के बाद वन ऑफ यू वाज इन द कार विद मी, देन आई वेंट टू इनॉग्रेट अ प्रोजेक्ट। अभी आपसे बात हो रही है, इसके बाद मैं और फंक्शन में जा रहा हूं। फंक्शन के बाद मेरी कार्यक्रम है, सुबह 8 बजे से लगूंगा। अब एक्सरसाइज तो है, बट इज इट एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी? मुझे तो लगता है कुछ मैं आपसे मिल रहा हूं वो भी फ्यूटिलिटी नहीं है। कुछ आपसे मिलूंगा, कुछ आपसे मैं सीखूंगा, कुछ मेरी बात आप सुनेंगे और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। तो सर, जम्मू के लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए और इस बात का और भरोसा दिलाने के लिए कि अब डेवलपमेंट डिलीवरी होगी, आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज इज दैट वी स्टैंड विद यू। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इट इज टोटली कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ J&K। हमारी जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनका पूरा फायदा उठाइए। जहां पे आपको लगा कि इसके अलावा आपको किसी किस्म की एडिशनल सहायता चाहिए, हम वो उसके लिए भी साथ है। मैडम, आपने अभी मेरे को पाइपलाइन का पूछा, मैंने बोला अभी इस देश भर में 19,000 है, इसको हम 35,000 से भी ऊपर ले जा रहे हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर इज स्टिल वेरी मच अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फोकस एरिया। Thank you, sir. तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोदी सरकार उनके साथ है और इस तरह से मंत्रियों का आना जाना जम्मू कश्मीर में लगा रहेगा और विकास भी तेजी के साथ होगा। और जहां तक पाइपलाइन की बात रही तो 2024 की उन्होंने डेडलाइन हमें दी कि 2024 तक जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन का सपना पूरा होगा। लेटेस्ट 2024 पहले चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।